Good evening, everyone. Thank you all for joining. Hope you had a good day today. Markets down almost again 1%. No, tourism sector isn't performing. Automobile is taking a bit. It's down a bit. So, just have a track what is happening because these are questions usually are asked in interviews when you become a research analyst. Okay. Always have, you can, guys, if you want, you can put an update on the chat box अगर तुमने कुछ किया होगा ना on a daily basis. ये basic answer कि market में क्या हुआ है, which stocks are up, which stocks are down and why. जो भी तुमको लगता है, you can start doing that. Adani is down 10%. Yes, Adani is down 10%. So I have something to show. One second. One of my, we at RK Advisory, we make a market tracker. Probably can show. All my students are making some trackers and just show you. Okay. This is the sectors that we are tracking. Okay, tourism, Devyani is down, Sapphire Foods is down. Okay, the entire tourism sector is down. So I'll show you how we are doing it. Starting from Nifty. The sectors today. So all the sectors were down. Nifty is down 0.95%. The top losers was Nifty Realty. So nothing was in the top gainers. Everything was in the losers. No sectors was in the top gainers. Then specifically, stocks. Dr. Reddy was up 1.72%, whereas Adani was down 10%. Adani Ports was down. Eternal was down 5%. This is on the Nifty stocks. Okay. This is about the Nifty. This is about the stocks that we are covering, on the automobile, Nifty, FMCG. So, see, Realty was down, but Shobha was up. Dr. Reddy's Pharma, Hindustan Copper. Okay, these are the stocks which we are not tracking. These are just an update. Sorry. Tourism, TV Realty was up, whereas all is in negative. This is the automobile. Okay, automotive investment was down 3.5%, MRF down, Hero MotoCorp is down, Maruti Suzuki is down 1.56%, and this is the entire. So only Ashok Leyland was positive. Ashok Leyland is growing. No, it is positive from last so many days. It is showing an uptrend. It has 160 has become 190. So things to look at. See, even after the fall, Bajaj Auto is positive. Mahindra is almost flat. So you need to understand, what are this reason? Why are they flat? So analyst का यही काम होता है. Okay. So you need to understand why it has gone on a primary case. Okay, fine. So now when the stocks are down, you need to understand what is the fundamental reasons that have changed, rather than just saying, okay, sir, because these are because of bribery allegation, and ये सब तो ठीक है. These are not related to finance, but one off होता है ऐसा. But obviously you have to talk about कि पूरे sector में क्या हुआ है, why is the sector down? Is there anything that has come up? या सिर्फ ऐसे ही सेलिंग हुई है. कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एफ आई सेल हुआ है, एफ आई ने सिर्फ सेलिंग की है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट व्हाई द सेक्टर इज अप. तो हम ये रोज करते हैं. इट इज लाइक वी हैव टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट. Okay. So guys, today I have a bit. We have to close by 8:30. I have something coming up at 8:30. So we'll start with day 3. In the day 3, yesterday we did the depreciation part. In that depreciation, I wanted to ask कि तुमने वो बोला था ना कि SLM method, फिर WDV method, and there is something called double declining method as well, correct? तो ये सब methods use कब होते हैं and why? Any idea? This is one of the question asked. When is this SLM method, WDV method, and your double declining used? So double declining क्या होता है? I will tell you what is double declining. Double declining is nothing but you multiply the depreciation rate into 2.
मतलब 20 नहीं, हम 40% डेप्रिसिएशन लेते हैं. ओके, दिस इज हाउ वी डू. बट सी, I just change it to 40%. मतलब ये multiply by 2 और you do this, ये तुम आधा करो. If I take this 40%, वो WDV, हम सॉरी आई रिलेटेड WDV के हिसाब से it reduces every year, and फिर 5th year का at then it will, कि मैं करता हूँ, ठीक है. ये तो मैंने SLM किया था, so that was WDV 20% of this. So it starts over here, 40%, and then this will be 40% of this. Okay, I will freeze this. Freeze this. तो ये अगर तुम्हारा डबल डिक्लाइनिंग, एंड प्रोबेबली इन द लास्ट ईयर whatever the depreciation is, it will. So at the end you will see depreciation over the years will be same. ये 6 लाख ही होगा, whether you take it WDV, whether you take it SLM, or whether you take it double declining. Now what is the purpose? Where is double declining, WDV, SLM and used? Okay, day 1 day 2 access is in the folder. वो ग्रुप पे है ना लिंक, आई विल शेयर द एक्सेस अगेन, ग्रुप पे है. Question guys, why it is SLM, WDV and double declining use? Why it is, where it is used and why? अलग अलग पहले तो है क्यों? Anyone? Ankit, Bipin, guys, answers now. Jaini, why is it? SLM is used when you will be using the asset in the same proportion. अच्छा, okay. और WDV क्या थोड़ा थोड़ा asset use करते हो? Some assets are more efficient in the beginning, so depreciation should be charged more. Perfect. Small businesses we use SLM to create another asset. नहीं नहीं guys, ऐसा नहीं होता है. Himanshu is partially right. Ankit, can you again tell your, अगर तुमको बताना है, I think WDV क्यों होता है? Can you elaborate? In the case WDV assets do not give the same benefits like laptop. Different assets lose value in a different way. Yeah, different assets lose value in a different way. हाँ, जैसे क्या है? What is the difference in that? Why WDV SLM is used? See, when you usually in finance जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं वहां पे SLM ही यूज होता है. यू डोंट से कि सर इसमें WDV यूज हो गया या इसमें ना तुम्हारा डबल डिक्लाइनिंग यूज है. वो कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज एट द एंड सब कुछ एट द एंड सब सेम ही होने वाला है. 5 years या 10 years जितना भी लाइफ है, इट विल, डेप्रिसिएशन का वैल्यू तो सेम ही होता है. इट इज ऑलवेज द सेम. बट व्हाट इज द पर्पस, टैक्स पर्पस, इसमें कब यूज होता है? एसेट्स विच आर करेक्ट, डिफरेंट एसेट्स लूज वैल्यू डिफरेंट वे. फॉर एग्जाम्पल तुमको पता है जब तुम एक गाड़ी लेते हो तो वैल्यू बहुत जल्दी डेप्रिशिएट होते हैं. द पॉइंट इट कम्स ऑफ द शोरूम, इट डेप्रिशिएट्स क्विकली. हाँ, क्विकली होती है. पर अभी मुझे बताओ, एक गाड़ी की वैल्यू क्विकली डेप्रिशिएट होती है या एक लैपटॉप की वैल्यू? 50%, इतना नहीं होता है. 50% नहीं होता है. मैं भी बोल सकता हूँ गाड़ी की 10% वैल्यू शोरूम के बाहर आते ही खत्म हो जाती है. बट लैपटॉप की तो वैल्यू, तो वंस यू ओपन द पैक इट इज लाइक वो फिर 30-40% गिर जाती है. सो फॉर लैपटॉप स्पेसिफिकली डबल डिक्लाइनिंग आर यूज, जिसकी वैल्यू बहुत जल्दी यूज होती है. WDV इज यूज फॉर स्पेसिफिकली कार्स एंड प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, जिसकी वैल्यू बहुत कम डेप्रिशिएट होती है. प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी जल्दी डेप्रिशिएट नहीं होती. फर्नीचर्स की होती है, प्रॉपर्टी की नहीं होती, बिल्डिंग्स के नहीं होते. तो तभी वो SLM मेथड यूज होता है. बट प्रोबेबली अकाउंटिंग में हम WDV ही यूज होता है. मेजरली WDV होता है. डबल डिक्लाइनिंग इन केस ऑफ एसेट्स विच आर डन फास्ट. तो स्पेसिफिकली IT कंपनीज में एसेट्स क्या होता है? IT कंपनी में जरा लैपटॉप्स, टेबल्स, फर्नीचर, यही ऐसा है, तो उन पे डबल डिक्लाइनिंग यूज होता है. WDV यूज फॉर कार, स्पेसिफिकली कार्स. तुमने अगर कोई घर पे रिनोवेशन किया है, फैक्ट्रीज में कुछ किया है, तो वहां पे WDV यूज होता है. एंड SLM इज लाइक, इट इज जनरल की तुम किसमें भी यूज कर सकते हो. इट इज बेटर टू यूज SLM ताकि हमको एक बराबर बेनिफिट पता चले.
वरना WDV एंड डबल डिक्लाइनिंग इज जस्ट फॉर टैक्स पर्पस, नथिंग एल्स। उसका और कुछ भी वैल्यू है नहीं। एक तो डेप्रिसिएशन तुम 40% कर सकते हो, या अदर वे राउंड इसका तुम आधा कर दो तो भी वो 40% ही होगा। ओके, दिस ऑल्सो बिकम, सो आइदर यू इंक्रीज योर डेप्रिसिएशन इनटू 2 करो, या एसेट लाइफ को आधा करो। अच्छा, तो द लेस द एसेट लाइफ, द मोर द डेप्रिसिएशन, याद रखो। बिकॉज द लेस द एसेट यू यूज, द मोर द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज। क्योंकि लाइफ कम हो गया, ऑब्वियसली इट मीन्स दैट यू आर यूजिंग मोर। तुम एसेट बहुत जल्दी रिप्लेस कर रहे हो। Okay. अच्छा, नाउ देयर वाज समथिंग कॉल्ड गुडविल, सॉरी, क्या, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन होता है। इनटेंजिबल एसेट्स आर योर पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। अभी उस पे डेप्रिशिएट कैसे हो रहा है? अच्छा, यू हैव अमोर्टाइजेशन ऑन दैट, ऑन व्हाट बेसिस? ये अमोर्टाइजेशन कैसे आता है, क्या परसेंटेज होता है उसका? एनी आइडिया? लेट्स से मैं बोलता हूँ मेरा पेटेंट है, उसका अमोर्टाइजेशन कैसे होता है? हाउ इट इज अमोर्टाइज्ड? पीरियड ऑफ पेटेंट यूज, करेक्ट, पीरियड ऑफ पेटेंट। तो कहना है से गाइस, ये जो लाइफ ऑफ एसेट है, इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, उसी को सेम वे में अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। एम आई राइट? मतलब देर इज नो डिफरेंस है। जिनको लगता है कि अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन अलग है, कुछ अलग नहीं है। इट इज जस्ट दैट अमोर्टाइजेशन आर डन फॉर इनटेंजिबल एसेट्स विच यू कैनॉट फील, विच यू कैनॉट टच एंड यू कैनॉट फील। वो एसेट्स को हम अमोर्टाइज बोलते हैं, एंड बाकी एसेट्स को हम डेप्रिशिएट बोलते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ओके, उसमें भी लाइफ होता है, उसमें भी डिप्रेशन में लाइफ होता है। अच्छा, व्हाट अबाउट गुडविल? गुडविल क्या रेट पे अमोर्टाइज होता है? तो क्वेश्चन वाज गुडविल, ये क्या रेट पे अमोर्टाइज होता है? हाँ, ये श्रेयांश करेक्ट, अमोर्टाइजेशन इज अनदर वर्ड फॉर डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। सेल्फ जनरेटेड इज नॉट अमोर्टाइज। अच्छा, ठीक है, और बाहर से आया तो ओके। एक्वायर एट 25%, तो 25% पे होता है डेप्रिशिएट। इन टैक्स वी डू दिस, ओके। एक्वायर एट 25%, मतलब बाहर से एक्वायर किया तो गाइस दिस वन ना, डेप्रिसिएशन क्या रेट पे अमोर्टाइज होता है, सॉरी, गुडविल क्या रेट पे अमोर्टाइज होता है, व्हाट इज इट? एनीवन? 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 When we acquire, we estimate a number of years it will give us the benefit. We check for impairment. Guys, depreciate, goodwill is not amortized. Goodwill is not amortized. It is impaired. Guys, goodwill को लाइफ होती है क्या? And how is goodwill generated? Goodwill generate कैसे होता है? अंकित, self generating goodwill never generates on its own. गुडविल कभी तुम बोल नहीं सकते मेरा गुडविल 1 करोड़ का है, मैं बोलता मेरा ब्रांड है आर के एडवाइजरी, दैट वैल्यू इज 1 करोड़। आई कैन नॉट से दैट। गुडविल इज ओनली जनरेटेड व्हेन देयर इज एन एक्विजिशन, करेक्ट हिमांशु? व्हेन वी एक्वायर सम कंपनी, एंड एक्वायर सम कंपनी कहां पे, एट व्हाट प्राइस? गुडविल इज द अमाउंट दैट इज हायर, और मे बी मैं इसको करता हूं, प्राइस पेड टू एक्वायर, प्राइस पेड फॉर एक्विजिशन माइनस, माइनस नेट एसेट वैल्यू। क्या था नेट एसेट वैल्यू अपने कल किया था? नेट एसेट वैल्यू ऑफ द एक्वायर है ना। नेट एसेट वैल्यू इज योर एसेट्स माइनस ऑल योर लायबिलिटीज, या नेट एसेट वैल्यू मतलब बुक वैल्यू भी हुआ दूसरे कंपनी का, एक्वायर का बुक वैल्यू। मतलब मैं बोलता हूँ मेरा टोटल इक्विटी, जैसे आर के एडवाइजरी, ओके, आर के एडवाइजरी, टोटल इक्विटी इज
अच्छा ना, अपनी इक्विटी में ये नेट एसेट वैल्यू में कॉस्ट वैल्यू लेना चाहिए, फेयर वैल्यू लेना चाहिए? कॉस्ट वैल्यू और फेयर वैल्यू क्या लेना चाहिए? अगर कोई एसेट का फेयर वैल्यू मिल रहा है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लेना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, तो कोई कोई एसेट का ना, जैसे लैंड का फेयर वैल्यू मिल जाता है, बट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू, तुम्हारे फर्नीचर का फेयर वैल्यू मिलता है क्या? तुमको पता है तुम्हारा फर्नीचर कितने का है अभी घर पे? विच इज डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट इट। तो जिसका फेयर वैल्यू मिलता है, फेयर वैल्यू, सो नेट एसेट इज फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो लेट्स से मेरा फेयर वैल्यू, मेरा इक्विटी है आर्के एडवाइजरी का, विच इज एट लेट्स से 1 लाख, बट लेट्स से मेंटर नेक्स्ट इज अक्वायरिंग आर्के एडवाइजरी। अच्छा, एक्विजिशन में होता है, मर्जर में नहीं होता गुडविल। लेट मी टेल यू, मर्जर्स में देर इज नो गुडविल, बिकॉज मर्जर मतलब एक नई एंटिटी फॉर्म होती है, एंड मर्जर्स आर वेरी रेयर। तुमको पता है विच वॉज द लास्ट मर्जर विट हैपन? मतलब मर्जर एक्वेशन, मर्जर एक्वेशन याद है किसी को? वोडाफोन, वोडाफोन आइडिया। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? नथिंग? एच डी एफ सी बैंक एंड एच डी एफ सी। तुम लोग बहुत बहुत ज्यादा अ, पीछे हो लाइफ में। गाइस, सफायर फूड्स एंड देवयानी फूड्स, सफायर फूड्स एंड देवयानी फूड्स, पिज्जा हट, केएफसी, बर्गर किंग खाते हो ना तुम? खाते हो ना? पता नहीं क्या हो रहा है उसमें। व्हाई इज इट सो? व्हाई यू गाइस आर सो बिहाइंड द मार्केट्स? जानबूझ के पूछा मैंने, कौन सा है सबको वही याद आता है? वोडाफोन आइडिया, एच डी एफ सी बैंक, बिपिन को याद आ गया, एच डी एफ सी बैंक एंड एच डी एफ सी। वॉट अबाउट द रिसेंट मर्जर, देवयानी फूड्स और सफायर फूड्स? आई डोंट ट्रैक द न्यूज ना, वही बोलता हूँ, इसके लिए बोलता हूँ स्टॉक ट्रैक किया करो, ताकि जब उसके रीजंस आते हैं, स्टॉक क्यों गिरता है एंड क्या गिरता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हमारे यूडेमी एंड कोरेसा आर नॉट लिस्टेड, तो यू विल नॉट गेट द डेटा ऑन दैट। डिज्नी, हॉटस्टार, जियो अक्वायर हो गया हॉटस्टार, गाइस मर्ज नहीं हुआ है। क्या? रिलायंस हैज अक्वायर्ड हॉटस्टार, मणिपाल हॉस्पिटल्स। गाइस ये तुम बोल रहे हो, दिस गाइस द थिंग्स यू आर टॉकिंग, इसका तुमको डेटा नहीं मिलेगा। द रीजन आई आस्क्ड यू इज बिकॉज मैं ये पूछूंगा ना, मर्जर्स क्या वैल्यू पे हुआ है? बताओ बताओ, डिज्नी, हॉटस्टार, जियो में इबिटा कितना था हॉटस्टार का? कितने पे खरीदा है, कितने पे मर्ज हुआ है? स्वैप रेशो क्या था? तो ना एआई को पूछ लेना, एक एक्सरसाइज करना, जब भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरव्यू को जाओगे ना, एक एक्सरसाइज करना कि लास्ट जितने भी बड़े मर्जर्स हुए थे विच हैज डेटा पॉइंट्स, उसका एआई को पूछ लेना कि इसमें कौन से मर्जर्स एंड एक्विजिशन में कौन सी चीजें देखनी चाहिए, एंड उसमें क्या हेल्प होता है, सॉरी कौन सी चीजें देखनी चाहिए, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दैट मर्जर। व्हाई डिड वोडाफोन आइडिया मर्ज, व्हाई डिड एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक मर्ज, फिर जो स्वैप रेशो हुआ वो क्या रेशो में हुआ, अभी देवयानी सफायर फूड्स में हो रहा है तो क्या रेशो में हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट, इससे क्या होगा। अगेन रैन पैक्सी, सन फार्मा को सालों हो गए, सन फार्मा का भी नया है ऑर्गेना, और क्या ना, आई थिंक समथिंग नाम है। इट इज ऑन द एन एक्विजिशन था, रैन पैक्सी वाजंट अ मर्जर। इस इन्वेस्टमेंट बैंक में जाना है एंड तुमको रिसेंट डेटा नहीं पता, सो इट्स अ बिट ऑफ कंसर्न। ओके, तुम सोचो एक एनालिस्ट के साथ बात कर रहे हो, बिकॉज मैं प्रोफेसर नहीं हूं ना, आई कैन टेल यू आई एम नॉट अ प्रोफेसर। भले मैं सिखाता हूँ, बट मेरा 90% ऑफ द टाइम मार्केट्स पे ध्यान होता है, क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो व्हेन यू वर्क विथ मी, जो क्लासेस में है, तो मैं हमेशा मार्केट्स की बातें करता हूँ कि क्या होगा, व्हाट हैज चेंज, व्हाट हैज इंक्रीज, जैसे यू विल सी ना, मैं आई डोंट स्टार्ट डायरेक्टली विद एन आईएसएम क्लासेस में बस पढ़ाना है कुछ, तो मार्केट में क्या हुआ है, लिंक इट टू द प्रैक्टिकल लाइफ, इट एक्चुअली हेल्प्स। तो इस पे आते हैं वापस, आरके एडवाइजरी 1 लाख का मेरा बुक वैल्यू है, एंड द परचेज प्राइस वाज अराउंड लेट्स से मेंटर नेक्स्ट एलएलपी, ओके, मेंटर नेक्स्ट इज is buying at 1,50,000,
So probably yes, the 50,000 difference is the goodwill, and the goodwill is shown on the annual report. The goodwill is shown on the annual report. अच्छा मुझे तो कुछ दिखाना है. I'll just open one Tata Consumers का. I will open this number. मुझे सिर्फ एक बात बता, इसका एनालिसिस तुम कैसे करोगे? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसके ना फिक्स में यहाँ पे ओके. इंटेंजिबल एसेट ओके. यहाँ से इंटेंजिबल एसेट, यू सी यहाँ से ये बढ़ गया. क्या हुआ होगा? इतना बढ़ता है इंटेंजिबल एसेट्स, 6,000 करोड़ से बढ़ गया. व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू अज्यूम फ्रॉम दिस? व्हाट डू यू अज्यूम फ्रॉम दिस? intangible assets increase 6,000 crores. क्या हुआ होगा? एक्विजिशन, अज्यूमिंग ये गुडविल है. गाइस विपिन, मर्जर नहीं होता है. मर्जर होगा तो दो कंपनीज ज्वाइन होते हैं. यू विल नेवर सी दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स अगेन. टाटा कंज्यूमर्स विल बी कमिंग, वो टाटा कंज्यूमर्स कुछ अलग हो जाएगा. इट इज ऑलवेज एक्विजिशन. एक्विजिशन हुआ है, करेक्ट. तो गुडविल बढ़ गया, करेक्ट. अज्यूमिंग ये गुडविल था, ये गुडविल बढ़ गया. अच्छा भाई, यहां से 10,566 है, 10,800 हुआ है. गुडविल बढ़ गया. व्हाट डू मीन बाय दिस? इंक्रीज ऑफ गुडविल. गुडविल की वैल्यू बढ़ गई. डज इट मीन दैट? डज इट मीन कि गुडविल की वैल्यू बढ़ गई? यस और नो? गाइस आंसर यस और नो. डू यू थिंक दैट गुडविल की वैल्यू बढ़ गई? इट कैन ओनली बी अमोर्टाइज. अंकित, गुडविल इज नॉट अमोर्टाइज, गुडविल इज इम्पेयर्ड. प्रैक्टिकल, लुक एट प्रैक्टिकल स्टफ. गुडविल इस इम्पेयर का क्या मतलब होता है वो बता दो. अभी जब गुडविल की वैल्यू बढ़ता है तो ऐसा नहीं, वापस मैं बोलता हूँ, इंटरनली जनरेटेड गुडविल आर नॉट शोन ऑन द बैलेंस शीट. गुडविल इज क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज एन एक्विजिशन. तो ये 800 से ये सॉरी 500 से 800 का 300 करोड़ का गुडविल बढ़ा है. इसका मतलब तुम्हारी वैल्यू नहीं बढ़ी है गाइस. इसका मतलब कंपनी हैज एक्वायर्ड वन मोर कंपनी. इसका वो मतलब होता है. यू विल रेयरली थिंक कि गुडविल कम हो गया है. इट्स वेरी रेयर कि गुडविल कम हो गया है. बट ये जब भी बढ़ता है, एक तो सेम रहता है. इफ यू डोंट हैव एनी एनालिसिस, फाइनेंशियल मॉडलिंग जब करते हो, इफ यू हैव नो एनालिसिस, गुडविल को तुम सेम ही रखते हो. यू कैन नॉट से कि गुडविल बढ़ गया है. हाँ, पर अगर एक्विजिशन हो गया तुमको निकालना है कि व्हाट इज द गुडविल दैट द कंपनी विल बी रिपोर्टिंग इन द नेक्स्ट ईयर. तो वो फाइनेंशियल मॉडल में तुमको ऐड करना होता है. So whenever a goodwill is increasing, it means that the company has acquired another asset, another company उसने acquire किया है. देखो, because यहाँ पे तो ठीक था, छोटा छोटा अमाउंट है. यहाँ पे सी अगेन 11,400 का 17,000 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का एक्विजिशन. अब ये कहाँ पे समझेगा पता है मुझे? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. You will get something in the investment activity. यहाँ पे see 3,000 करोड़, obviously not 6,000, 3,000 करोड़ का acquisition of companies. See this 24 में acquisition हुआ है. ये तो पूरा intangible था, इसके लिए अलग से goodwill नहीं है, but probably you can see that there was a big acquisition. This is what you need to understand. ये financial models बनाते हैं तो ये सब उसमें linkages होने चाहिए. You should understand what are the things which are changing the company's financial statements. हाँ, इंटेंजिबल एसेट डिक्लाइन शायद से बेच दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है. इंटेंजिबल, अभी वो इंटेंजिबल, वो तुमको डीप में जाना है कि इंटेंजिबल में एग्जैक्टली क्या था. जैसे यहाँ पे क्या फिक्स एसेट का दे हैव गिवन डिफरेंटली, तो इंटेंजिबल का भी अलग से होता है कि इंटेंजिबल एसेट मतलब क्या था. हो सकता है कि दे मस्ट हैव सोल्ड ऑफ. अच्छा, इम्पेयर क्या होता है? व्हेन गुडविल डिक्लाइंस
It's very rare that goodwill is not amortized. It is impaired. हाँ, impairment is check. अभी रोज और वो हर साल भी गुडविल इम्पेयर नहीं होता है. लेट मी टेल यू, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के हर साल वो इम्पेयर नहीं, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इट. गुडविल हम यूज नहीं करते. इट इज एन इन्वेस्टमेंट. हाँ, तो इम्पेयर होता है मतलब क्या, ऐसा होता है कि लेट्स से टाटा मोटर्स ने आज मारुति को एक्वायर किया, एंड सिंस मारुति हैज अ ब्रांड वैल्यू, दैट इज व्हाई दे हैव पेड एन एक्स्ट्रा अमाउंट. एक्स्ट्रा अमाउंट रह गया गुडविल, सॉरी फॉरगॉट टू मेंशन गुडविल. दिस इज योर गुडविल विच इज शोन ऑन द बैलेंस शीट. तो जैसे टाटा मोटर्स ने अगर मारुति को एक्वायर किया, सो इट डजंट मीन दैट मारुति, सो इट माइट बी पॉसिबल दैट टाटा मोटर्स हैव पेड अ प्रीमियम टू बाय मारुति. ऑब्वियसली बुक वैल्यू के ऊपर प्रीमियम ही पे होता है, बट द सेम टाइम, what if in the future Tata Motor is not able to maintain the brand that Maruti is was maintaining for so many years? At that time, it is checked for impairment कि whether that value, मतलब तुमने जो additional example 50,000 दिए है, is it worth, उसका वैल्यू उतना है या गिर रहा है? And that we cannot do. There are valuers who do it, and it is very difficult to do. मैं भी नहीं कर सकता हूँ कि गुडविल क्या है, तो उसको बहुत तुमको इंडस्ट्री नॉलेज एंड वो सब चाहिए. सो डोंट गो इनटू दैट मेस, बट ओनली अंडरस्टैंड दैट goodwill sorry is amortized, and it is goodwill is not amortized, and it is always impaired. and impairment भी हर साल नहीं होता है. it depends, अगर 2 साल में कुछ हुआ हो कंपनी को तो ही it happens. fine fine. अभी ना मुझे कुछ अच्छा, कैन यू टेल मी, अभी ये इंटेंजिबल एसेट्स हो गए तुम्हारे, टैंजिबल एसेट्स हो गए, इंटेंजिबल, दिस आर द मेजर पार्ट्स ऑन द बैलेंस शीट. टैंजिबल इंटेंजिबल होता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. जैसे मैंने बोला, इफ यू हैव 20% इन्वेस्टमेंट्स, तो वो इन्वेस्टमेंट्स दिखते हैं. जैसे तुमने कोई कंपनी एक्वायर की है, बट यू हैव ओनली टेकन 10% स्टेक, यू डोंट हैव अ कंट्रोलिंग स्टेक, सो यू शो इट एज अ इन्वेस्टमेंट. देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज वेल. A quick question: investment properties are should be reported at cost value or fair value? Fair value मतलब market value. जिनको नहीं पता, fair value मतलब market value. Investment properties. Listen carefully. Investment properties you have taken for the purpose of selling it. You have taken for the purpose of selling it. You have an option. You have an option under IFRS that whether you can put it at cost or you can put it at fair value. कुणाल नहीं, कॉस्ट और विच एवर इज लो, वो क्या होता है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लो, वो इन्वेंटरीज में होता है, इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है. सी मैंने कल भी तो पता था, इंटेंट, इफ द इंटेंट इज ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट, प्रोबेबली यू कैन पोस्ट इट एट द फेयर वैल्यू. अगर इंटेंशन नहीं है सेल करने का, तो ऑब्वियसली इट इज डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस द डेप्रिसिएशन. हाँ, दैट्स व्हाट आई मीन. इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन कि तुमने वो क्या इंटेंशन से पर्पस की परचेस किया है. Because as on the balance sheet, you as a company needs to show a true picture to the investors. Because अगर मैं तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे वो मत बताओ कि तुमने प्रॉपर्टी 20 साल पहले ली थी, अभी उसका वैल्यू 1 करोड़ हो गया, या चलो 100 करोड़ हो गया, और तुम अभी तक उसको 1 करोड़ रुपए दिखा रहे हो. तुम मुझे नहीं समझेगा तुम्हारी कंपनी की वैल्यू कितनी है. सो ये ध्यान रखना होता है. हाँ, इट हैज एन ऑप्शन टू रिपोर्ट ऑन, तो उस पर फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट हुआ तो डेप्रिसिएशन नहीं होता है, बट कॉस्ट पे रिपोर्ट हुआ तो यू हैव टू टेक अ डेप्रिसिएशन. ओके. मुझे ना एक क्वेश्चन पूछा, हाँ, जस्ट जस्ट टेल मी विच आर द करंट एसेट्स. एक क्वेश्चन पूछा गया था, लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स. बताओ मुझे क्या 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 होता है. आई जस्ट वांट टू सी योर आंसर, हाउ आर यू गिविंग द आंसर. हाँ, यू हैव एन ऑप्शन अंकित, यू हैव एन ऑप्शन, वही बोल रहा हूँ. इंडिया में रिपोर्ट होता है कॉस्ट पे, बट यू हैव एन ऑप्शन टू रिपोर्ट इट फेयर वैल्यू. बताना होता है कि तो रीवैल्यूएशन रिजर्व तभी काम आता है वो, कि फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट हुआ तो रीवैल्यूएशन रिजर्व बनता है उससे. बिकॉज इट इज नॉट योर गेन. क्या शायद क्या इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एसेट विच कैन बी, नहीं नहीं, कौन से है वो तो पता है, एसेट विच कैन बी लिक्विडेटेड.
करंट एसेट ऑब्वियसली करंट, आई अज्यूम सबको पता है करंट एसेट्स आर समथिंग व्हिच आर यूज्ड फॉर 1 year, ओके, व्हिच आर सॉरी लेस फॉर व्हिच आर यूज्ड फॉर लेस देन 1 year. Machinery, how can machinery be a current asset? Current assets are assets which are used for less than 1 year. The one asset में 1 year में less than 1 year में you will liquidate it usually. Prepaid expenses. Guys, now this is a very basic question. This is a very basic question. मैं ना एक annual report खोलता हूँ कोई कंपनी का, let's say टाटा कंज्यूमर्स का ही खोलता हूँ. Let's open this. The reason I asked you is because तुम पढ़ते तो हो, तुम आंसर्स भी राइट देते हो, फिर बोलते हो सर मैं इंटरव्यू में फेल क्यों हुआ. मैंने तो सब बराबर बोला. ऐसा हुआ है कभी तुम्हारे साथ कि तुमने तो सब बराबर बोला फिर भी मैं फेल क्यों हुआ? मुझे समझा नहीं. हुआ है ऐसा? हुआ हुआ होगा. यस, हुआ होगा. करेक्ट. द रीजन इज व्हेन आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन दैट गिव मी अ लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स, तुमने क्या किया, तुम्हारे मन में जो आया वो तुमने बोल दिया. एम आई राइट? करेक्ट. करेक्ट ना? तुम्हारे जो मतलब तुमको जो याद है, तुमने जो पढ़ा था वो तुमने बोल दिया. इन्वेंट्री बोला, कैश एंड कैश रिसीवेबल्स बोला. देयर इज अ वे ऑफ सेइंग करंट एसेट्स को जब भी हम लिस्ट करें. तुमने देखो यहाँ पे हमेशा पहले इन्वेंट्रीज होती है. तुम कोई भी एनुअल रिपोर्ट खोल रहे हो, इसमें हमेशा पहले इन्वेंट्रीज होती है. ऐसा क्यों? सब इन्वेंट्रीज ही रिपोर्ट करते हैं पहले. ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों? लाइंग विथ कंपनी. तो क्या हुआ लाइंग इन कंपनी? सो यू रिपोर्टेड फर्स्ट वेनेवर. और इसमें पीपी से ही क्यों चालू होता है, इनटेंजिबल से चालू क्यों नहीं हुआ, गुडविल से चालू क्यों नहीं हुआ? वो भी तो एसेट ही था ना. हाँ, हाउ रिमांशु सेड from less liquid to more liquid. So when I asked you this question, leave me a list of current assets, तो तुम randomly answers क्यों देते हो? There is a way. क्योंकि समझो कि अगर ये क्वेश्चन तुमको पूछा है, कैन आई से गाइस आज तुम जितने भी लोग हो, 40-50 लोग हो कॉल पे, सबको पता है करंट एसेट्स कौन से है. सबने आंसर राइट ही दिया होगा. मेरे को एक को सिलेक्ट करना है. किसको सिलेक्ट करूंगा मैं? किसको सिलेक्ट करूंगा? The one who have gave me an answer in a perfect way. हाँ, हिमांशु. ओके, बोलते हिमांशु. नहीं, उसने भी आंसर दिया नहीं. उसने सिर्फ ये बोला कि लेस लिक्विड टू मोर लिक्विड. आंसर नहीं दिया, बट बोलते वक्त उसने भी ऐसे ही बोला रैंडमली. सो हाउ विल यू स्टार्ट? क्या स्टार्ट करोगे? लिस्ट ऑफ करना. फर्स्ट इज ऑलवेज इन्वेंट्रीज. उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स. उसके बाद क्या याद है? उसके बाद एनीथिंग? कोई और एसेट्स कौन सा है? हाँ, इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट. अगर लेस लिक्विड है तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं. ये तो भी सी दिस आर. अच्छा, देर आर समथिंग पता है कॉल्ड ऑपरेटिंग एसेट्स. क्या होता है मतलब ऑपरेटिंग एसेट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ऑपरेटिंग एसेट्स? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एसेट्स? एनीवन वुड लाइक टू से व्हाट आर ऑपरेटिंग एसेट्स? बता. अगर मैं पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एसेट्स? टूल्स पेपर्स नीडेड स्टेशनरी एसेट्स हो गए. टूल्स पेपर्स और ऑपरेटिंग एसेट्स तो साथ. बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा. विच इज यूज इन ऑपरेटिंग ऑफ द कंपनी. Assets which can be quickly consumed in day-to-day operations.
एसेट्स हेल्पिंग इन डे टू डे ऑपरेशंस, प्लांट नहीं जैनी, करंट एसेट्स की बात कर रहा है, जस्ट टॉकिंग करंट एसेट्स, नॉट अबाउट द लॉन्ग टर्म, करंट सॉरी करंट ऑपरेटिंग एसेट्स, सॉरी करंट ऑपरेटिंग करंट एसेट्स। ये जो एसेट्स होता है विच आर यूज इन योर डे टू डे लाइफ, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स के बाद गाइस देयर इज समथिंग व्हिच कम्स आफ्टर रिसीवेबल, राइट आफ्टर रिसीवेबल, ऐसे रिसीवेबल्स माइनस बैड डेट्स, ऐसा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना? बोल सकते हो, बोलने को तो बोल ही सकते हो, करेक्ट। ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस बैड, सो इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, जैनी तुमने बीच में बोला था प्रीपेड एक्सपेंसेस, prepaid expenses is also one type of a current asset which is used regularly। तुम्हारे पर्सनल लाइफ में तुम लेते ना सब्सक्रिप्शन, है ना तुम्हारे पास, हॉटस्टार, जियो, नेटफ्लिक्स, सबका है ना, सब प्रीपेड एक्सपेंसेस है, उसके बिना जी तो नहीं सकते तुम। फॉरगेट अबाउट वो सब, योर मोबाइल फोन, बिफोर पेइंग यू कैनॉट, बिफोर पेइंग द बिल यू कैनॉट यूज योर फोन, प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद हाँ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं। अभी ये लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं? लोन्स एंड एडवांसेस बेसिकली हम कस्टमर्स को देते हैं, या प्रोबेबली कभी कभी हम हमारे एम्प्लॉयज को भी देते हैं, बट बेसिकली ये कस्टमर्स को जो लोन देते हैं वो है सप्लायर्स को, बेसिकली दिस इज द वन। यू सी हाउ द वे आई एम सेइंग इट, it's just that it shows that this guy has not only learned finance, he has understood it कि वो क्या वे में बता रहा है, and he's so confident of answering in the interviews. You don't believe guys, मैंने एक टीयर 4 वाले को प्लेस करवाया था एक आईबी फर्म में, बुटीक आईबी फर्म था। उसने उसको बेसिक क्वेश्चन पूछे कि गिव मी अ लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स, उसने 4 के अलावा और बोल नहीं पाया वो। मैं बोला हाउ कैन यू डू, कि मेरा फ्रेंड बैठा है सामने, ही इज टेकिंग एन इंटरव्यू, मैं भी था इंटरव्यू में, तुम इतना बेसिक एज एन एमबीए स्टूडेंट कैसे नहीं बोल सकते? बस इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स बोलते हैं, पता नहीं, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स एंड कैश, मतलब बाकी तो बाकी भूल गया मैं एसेट। सर आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। इज इट? यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, तुम 11th स्टैंडर्ड से कॉमर्स पढ़ रहे हो, तुमको ये सब के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। व्हाट आर करंट एसेट्स? एनीथिंग एल्स? तुमको पता है करंट एसेट्स है? फिर आते हैं तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म मेंशन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेंशन मत करना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, देन योर कैश एंड कैश बैलेंस। अच्छा ना, इसमें और एक था, एक काफी टाइम अभी यहाँ पे ना, आई शो यू, ये इसमें ना एक अदर करंट एसेट, देखो ये अदर करंट एसेट आता है। अब ये अदर करंट एसेट्स क्या होता है? वो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी कंपनी को रिलेटेड होते हैं, कंपनी के बिजनेस रिलेटेड होते हैं, वो होता है। हाँ, वो लोन्स एंड एडवांस में आ गया जानी। एक और एक आता है जो ना मैंने कंपनी में देखा था, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। तो हम जब वो मॉडल बनाते हैं ना, तो हम इसका भी ब्रेकअप करते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट ना, दिस इज, है तो छोटा अमाउंट, दिस इज अ स्मॉल अमाउंट, बट सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ऐसे होते हैं कि जब तुम ना वो व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग योर मनी, योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड, या एक्सपोर्टिंग योर प्रोडक्ट्स, आई विल से रादर, व्हेन एक्सपोर्टिंग योर प्रोडक्ट्स, वो एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स में बेसिकली ऐसा होता है कि यू विल हैव टू टॉक अबाउट, वो एक डिपॉजिट देना होता है तुमको बैंक में, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बिकॉज तुमको ना वो बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट जो होता है, तो यू हैव टू मेक अ बिग डिपॉजिट ओवर देयर। तो ये भी एक करंट एसेट्स हो गया, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन, वो बिना वो ये तुमको प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाओगे तुम। तो ये भी एक पार्ट है जो मैंने कोई कोई कंपनीज में देखा था। तो यू हैव टू गो डे वो एनुअल रिपोर्ट ना खोल के देखना होता है कि वहां पे उसके शेड्यूल्स में कौन से एसेट्स है, और बहुत कुछ होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट दिस आर द बेसिक बेसिक दे आर यूज। बोले ना इतने सारे, कितने हो गए? 7, 7 हो गए। हाँ, अदर फाइनेंशियल एसेट्स वही इन्वेस्टमेंट्स होते हैं,
तुमने किसी को लोन दिया है, वो शॉर्ट टर्म लोन एंड वो सब, इट्स अ पार्ट ऑफ योर अदर फाइनेंशियल एसेट्स। कि तुमने तुमने किसी को लोन दिया है फॉर इंटरेस्ट पर्पस, वो होता था ना गम, या फिर नॉन इंटरेस्ट पे दिया है। यूजुअली मैं जब क्रिसिल में था तो मुझे भी एलिजिबल था, आई वाज एलिजिबल फॉर अ लोन। सो दिस आर अ लिस्ट ऑफ योर करंट एसेट्स एंड लिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। बताओ अभी जल्दी जल्दी, विच विल यू स्टार्ट फ्रॉम क्विकली? ट्रेड पेबल्स एक ही, और हाँ अभी गूगल करोगे, है ना? इतना टाइम लग रहा है मतलब गूगल कर रहे हो तुम लोग। लोन एंड एडवांसेस, और हाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या ये होता है? बट दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये लास्ट पे बोलेगा तो भी चल जाएगा हिमांशु। डेटर्स कैसे है लायबिलिटीज में? डेटर्स इन द लायबिलिटी, other guys, other Shashidharan, other non-current assets, how do you say that other non-current assets? हम liabilities की बात कर रहे हैं। प्रोविजंस, प्रोविजंस किसके होते हैं? प्रोविजंस किसके होते हैं? या accrued interest, yes, accrued interest, you can say that accrued interest, interest accrued but not paid, provision for income tax, bad, doubtful debts, ये तो ठीक है। और कुछ? हाँ डिफर्ड रेवेन्यू, या गुड वन हिमांशु, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, किसने बोला नहीं? डिफर्ड रेवेन्यू। अभी ना क्या प्रॉब्लम है बता, क्या प्रॉब्लम? तुम ना जब कोरस में आंसर देते हो ना, तो सब लोग एक एक देते हो तो याद आता है। तो क्वेश्चन इज तुम एक साथ क्यों नहीं देते? व्हाई आर यू नॉट एबल टू आंसर इट इन वन लाइन? ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम होता है इंटरव्यू में। तुम आंसर तो दे देते हो, फिर इधर उधर याद याद करके देते हो। इसमें क्या होता है, द इंटरव्यूअर्स जज यू बेस्ड ऑन योर हाउ कॉन्फिडेंट आर यू। आंसर इज राइट बट you are not confident of giving it. This is what leads you that even after giving right answers, you are not able to crack roles. I will say, as a recruiter, this is one of the reasons I will reject a candidate, because he is not giving the answers in a right order. हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे हेड्स याद नहीं रहते बिकॉज तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कभी काम ही नहीं करते। हाउ मेनी मॉडल्स हैव यू मेड? कितने मॉडल्स तुमने बनाए हैं? कितने फोकसिंग किया है तुमने? कितना रिसर्च किया है तुमने? बिकॉज यू गाइस आर नॉट मेकिंग फाइनेंशियल मॉडल्स ऑन अ डेली बेसिस। व्हेन आई वाज एन इंटर्न, मैंने बोला ना 45 डेज में आई मेड 20 मॉडल्स, 20 कम। सोचो मेरे तो ये सब रट्टा था कि क्या क्या किधर किधर क्या क्या आता है। 20, और हर एक कंपनी में अलग अलग। टाटा मोटर्स का कभी बनाओ तुम, तो टाटा मोटर्स में तो इतने रैंडम इतने सारी चीजें आते हैं। टाटा मोटर्स इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर रिसर्च। फाइनेंशियल लर्न करना था, टाटा मोटर्स का एनुअल रिपोर्ट खोल के इतने सारे चीजें हैं, तुमने कभी जिंदगी में देखे होगे ये भी आता है फाइनेंस में। सो मेनी थिंग्स विच कम्स। वही वही रीजन होता है कि यू डोंट गेट मॉडल्स नहीं आते। दर्पण वी हैड डन अ फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स, 2,000 रुपए का ही था। probably you can come on to it and learn all those things. ये नहीं होता है, दैट इज द प्रॉब्लम। तुम नंबर्स पंच भी नहीं करते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी नहीं करते ऑन अ डेली बेसिस। बढ़ गए, कम हो गए, क्यों बढ़े, क्यों कम हो गए, क्या रीजन से बढ़े हैं, ऐसा क्या आइटम बढ़ा है उसमें। दिस इज द रीजन दैट यू मिस, एंड वन ऑफ द रीजन यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू इज दिस। बिकॉज सी देर इज ऑलवेज समवन हु इज मोर टैलेंटेड देन यू, ये याद रखो। तुम सीए हो तो तुम्हारे पास एक रहेगा जो सीए रैंकर है, उसको रैंक आया है, तो तुम बोलोगे सर मैं सीए बन गया हूँ। कोई बोलेगा सर मैं फर्स्ट अटेम्प्टेड सीए हूँ। कोई फर्स्ट अटेम्प्टेड सीए को मिलता है अरे मैं रैंकर हूँ। कोई रैंकर को बोलता है मैं ऑल इंडिया टॉप 10 में हूँ। कोई ऑल इंडिया रैंकर होता है तो उसके सामने उसको आईएम वाला मिलता है कि मैं अहमदाबाद से हूँ। तो दिस थिंग्स कीप्स ऑन। सो इट्स अप टू यू दैट हाउ यू। आई हैव सीन ना पीपल गो कि सर मैंने एमबीए किया इसके लिए मुझे जॉब चाहिए। बहुत गलत है, वेरी बैड एटीट्यूड इन योर लाइफ कि मैंने एमबीए किया इसके लिए मुझे जॉब चाहिए। तुमने क्या प्रोजेक्ट्स पे काम किए उस पे बात करो।
कॉलेजेस में भी जब प्रोजेक्ट्स होते हैं तो मेक श्योर यू डू इट अंडर योर मेंटर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. द कॉन्फिडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज आई विल से गाइस कंपटीशन इतना बढ़ गया ना मार्केट में. सी मैं ना एक कॉलेज में 3-4 कॉलेजेस में सिखाता हूँ. देयर आर 300 स्टूडेंट्स दैट आई नो पर्सनली अपार्ट फ्रॉम माई कोर्सेज. पर्सनली मैं जानता हूँ. 2 साल से सिखा रहा हूँ. 300 600 स्टूडेंट्स मुझे उनके नाम से याद है. मतलब आई एक्चुअली नो देयर नेम्स. तुम बताओ मेरे पास एक ओपनिंग आया, मैं किसको रेफर करूं? 600 में से किसको रेफर करूं? तुमको तो मैं जानता भी नहीं पर्सनली, उनको तो मैं पर्सनली जानता हूं. एंड क्यू जॉब आता भी है. व्हाट आई विल जज? आई विल जज योर नॉलेज कि तुम एमबीए करे, इसके लिए मैं तुमको प्लेस करूं. मेरे लिए एक वेलिंगकर वाला स्टूडेंट भी सेम है और पीआईबीएम वाला स्टूडेंट भी सेम ही है. और एक आईएसएमएस जो कॉलेज है उसका भी स्टूडेंट भी मेरे लिए सेम ही है. वाई वुड आई बाइफरकेट कि वो वेलिंगकर से तो उसको अच्छा मिलेगा, वो टीयर 3 कॉलेज है उसको कम मिलेगा? It's just because the way I see you guys answering is not acceptable. Yes, I do teach, Jenny. I'm still teaching. This is what, this is the reason this is the reason you guys are majority of the times don't get selected in roles, even after giving right answers. Just to correct you, Ankit, provisions जो है तुमने बड़ा बोला बैड डेट्स होता है, बट सबसे ज्यादा बड़ा प्रोविजन इज योर एम्प्लॉय पेंशन फंड. वो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है. बाकी प्रोविजन इनकम टैक्स से बहुत छोटे होते हैं. इनकम टैक्स प्रोविजन नाउअडेज आर सेड टू बी डिफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज. हाँ, वो प्रोविजन इनकम टैक्स का होता है. एम्प्लॉय पेंशन बेनिफिट, सॉरी भूल गया मैं. एम्प्लॉय पेंशन जो पेंशन होता है दैट इज द बिगर अमाउंट ऑफ द प्रोविजंस. याद रखो अगर प्रोविजन विच आर द प्रोविजंस, तो इनकम टैक्स में क्योंकि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज ऑलरेडी. हाँ, यहाँ पे भी डीटीए जो नया आता है, डीटीए एंड योर डीटीएल, deferred tax liabilities. There is something called lease liabilities as well, where किसी ने कुछ बोला नहीं है ना. शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है. नो वन said this, which is the recent one which has been added in the market, in the annual report. क्यों नहीं आया? Jaini, I was expecting you will answer this. Something different from others. Why I am asking only Jaini? Because he said that he is from a tier 2 college. So Jaini, my expectation are over here तेरे से, तुमसे. ऐसा है. तुम है तो तुम तो अच्छा ही बोलना चाहिए. एंड ऐसा नहीं है कि जेनी से एक्सपेक्टेशन है. आई विल एक्सपेक्ट कि चलो यार tier 4 वाले ने भी बराबर बोला तो आई विल प्रीफर हिम और समवन tier 1 tier 2 से. बट वही होता है, द क्वालिटी इज लैकिंग समवेयर एंड आई ट्राई टू चेंज इट. तो आई एम प्लानिंग टू डू दिस सेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो आई एम सेइंग कि 8:30 टू मतलब 7:45 to 9 तो आई विल बी अवेलेबल ऑलमोस्ट मंडे टू फ्राइडे. अगर मैं इफ आई एम अवेलेबल एवरी डे तो मैं आई विल डू दिस. बट मुझे ये चाहिए कि तुम मेरे इंटरव्यू में जाके ऐसे सब सिचुएशन में मत फेल हो जाओ. रिसर्च में फेल हो समझ सकता है ना. तुमको कुछ टफ क्वेश्चन पूछा उसमें तुम फेल हो गए, बेसिक क्वेश्चन में फेल हो रहे हो एंड नॉट एक्सेप्टेड. आई डोंट पर्सनली लाइक दैट. यार यार तुम फाइनेंस में, मेरे भी तो है ना स्टूडेंट, मैं भी कभी तुमको हायर करूंगा एट फ्यूचर में. मैंने भी अभी 2 स्टूडेंट को हायर किया है. तो कभी लेट्स से मेरा इफ माय बिजनेस ग्रोस एंड इफ आई हायर यू, ऐसा नहीं होना चाहिए यार इसको बेसिक से नहीं आ रहे. अननेसेसरी नहीं होना चाहिए दिस थिंग. कॉन्फिडेंस इसके लिए बोला चैट पे लिखा आउट ऑफ द 45 स्टूडेंट आई एम नॉट श्योर 4-5 स्टूडेंट्स ही रिप्लाई कर रहे हैं. बट आई एम नॉट श्योर व्हाई इट्स लाइक दैट. और प्रोबेबली दोज आर अटेंडिंग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं. तो मैं बोलता हूँ क्लास में आया करो. तुमको अगर पता है तो सिर्फ मेरे आंसर क्वेश्चंस के आंसर किया करो. सी दिस इज नॉट अ बिग क्वेश्चन, ये सबको आता होगा. बट द वे टू आंसर ऑल्सो मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन द इंटरव्यूज. दैट इज व्हाई आई सेड, दैट इज व्हाई आई कीप दिस लाइव. करने का तो मैं भी रिकॉर्डिंग दे ही सकता हूँ तुमको, रिकॉर्डिंग से सुन लो. बट आई लाइक टू इंटरेक्ट कि तुमको प्रॉब्लम्स क्या है तुम्हारी लाइफ में एंड व्हाई आर यू नॉट एबल टू डू दिस इन अ सिंपल वे. कि इतने बेसिक क्वेश्चन को भी आंसर्स क्यों नहीं आ रहे. फाइन. सो गाइस आई हैव टू लीव. तो हम इस पे थोड़ा मंडे को बात करते हैं. ओके, आई विल टॉक ऑन मंडे. प्रोबेबली मंडे को 25 जनवरी है, 26 है. So Saturday, Sunday, I'm not available. So Monday to Friday, I will make sure I'm available every day, at least for 1 hour.
या ऐसा कोई आधा घंटा है देयर, बट 25th को तो आई एम 26 को आई एम देयर, सो वी विल नो हैव अ सेशन मंडे टू फ्राइडे एवरी वीक टिल वी कंप्लीट। या चलो बातचीत तो किया जाए मार्केट्स में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, एटलीस्ट यू कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। एंड यूट्यूब पे हमारे मॉर्निंग कॉल सुना करो, इफ यू आर विथ मी एटलीस्ट सुनो कि हम बात क्या कर रहे हैं। इफ यू डोंट हैव द मनी, मैं नहीं बोल रहा कि मेरा कोर्स ज्वाइन करो, मेंटरशिप ज्वाइन करो, बट एटलीस्ट लर्न समथिंग, कि याद रखोगे कि हाँ सर कुछ थे जिन्होंने कुछ हमको दिया था एंड वो इंटरव्यू में काम आया। आर वी गोइंग टू प्रोसेस एज पर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स? यस, वी आर गोइंग। बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लोज, दिस इज व्हाट, एंड उसी पे सब रेशियोज आएंगे, कॉर्पोरेट एक्शन आएंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस आएगा, फिर कंपनी एनालिसिस, इंडस्ट्री एंड देन कंपनी एनालिसिस। यस, इकोनॉमी भी आता है, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी। Once we are done with the financials, we'll do that. I am just sharing वो एक्सेस फाइल पे करना, मैं अभी करता हूँ, सबको अप्रूव करता हूँ वो एक्सेस पे। Okay. So day 3 what we learned, day 3 is nothing much on it। अपेक्स में day 3 क्या था? गुडविल अमोटाइज नहीं होता, इज नॉट अमोटाइज्ड, ये याद रखो, गुडविल इज नॉट अमोटाइज्ड। जस्ट एसएलएम, डब्ल्यूडीवी एंड डबल डिक्लाइनिंग मेथड कहाँ पे यूज होता है वो, एंड और क्या किया हमने, acquisitions, okay, that was fine। And what was the topic that we discussed? हाँ, short term current assets and current liabilities। okay, इसका list of current assets and याद रखना, list of current assets and current liabilities। लीज लाइबिलिटी हमने चालू किया था, मैं तुमको बता व्हाट इज दैट लीज लाइबिलिटीज, नेक्स्ट क्लास में। इंपॉर्टेंट वन, लीज लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने के। शो यू हाउ दैट लीज लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड एंड वो कैसे आता है। ओके हाँ, लिस्ट ऑफ एसेट्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एसेट्स द एसेट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द कंपनी। तो इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग नहीं हुआ इसमें, नोट्स टू अकाउंट में इन्वेस्टमेंट वाज इन अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस। लोन्स हो सकते हैं, कैश भी नहीं होता है पार्ट ऑफ ऑपरेशंस। कैश ऐसे तुमको है ना, कोई लोन लिया उसका भी कैश पड़ा हो सकता है तुम्हारे पास, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस। डीटीए क्या होगा? इस डीटीए डिफर्ड टैक्स एसेट्स, तो तुमने ज्यादा टैक्स भरा है, पार्ट ऑफ ऑपरेशंस, पार्ट ऑफ ऑपरेशंस, ने ज्यादा टैक्स भरा है। टैक्स कब भरते हो गाइस? हिमांशु, व्हेन डू यू पे टैक्स? व्हेन यू पे टैक्स, तो प्रॉफिट करते हैं। प्रॉफिट कैसे आता है? प्रोडक्ट सेल करके, ऑपरेशन से। हाँ, तो आफ्टर तो जनरेटिंग रेवेन्यू इज व्हाट? ऑपरेटिंग ना, तो डीटीए भी आएगा एज एन ऑपरेटिंग एसेट। एक्सेस फॉर दिस वीडियो वंशिका, जो वीडियोस जो है ये फाइल है ना, मैंने यहाँ पे तुम्हारे ग्रुप पे डाला है। आई हैव पुट द एक्सेस लिंक। guys, anyone can share, reshare the, अच्छा you cannot message on the, reshare करता हूँ वो लिंक। can my WhatsApp is locked out। no, it's that sir, yeah। मैं वो ग्रुप पे रीशेयर करता हूँ, तो लिंक तुम वापस भेजना, मैं वापस सबको एक्सेस दे देता हूँ। okay? आज का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उस पर। okay? Okay guys, thank you so much, have a nice weekend। अच्छा, those who are joining our sessions, हम लोग कल से चालू कर रहे हैं 24th। we are starting with how to enhance your financial modeling। मॉडलिंग आता है तो बेटर, बट अगर नहीं आता है तो हाउ टू एनहांस इट, वो कैसे चालू करना है। सो वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम टुमारो। ओके, दोज हु आर देयर 11 in। ओके, फाइन, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। Ankita, what is the difference between amortization and impairment and why only goodwill is impaired? ओके अंकित, वापस पूछो ना एक क्वेश्चन, ट्यूसडे को मैं बोलता हूँ, ठीक है? याद रखो। नो अंकित, आई विल नॉट ओपन, वो ना फिर स्पैम हो जाते हैं उसमें, दैट इज व्हाई आई डोंट ओपन। कोई कोई कुछ डाल देता है।
वो कुछ होगा तो डिस्कशन नहीं करते, बेटर इट कीप इट रॉ। ठीक है। बाय गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू, थैंक यू।